तो ये आर्टिकल मैंने पढ़ा था, ये इतना अच्छा आर्टिकल है कि बार बार पढ़ने की इच्छा होती है। जी स्वामी विवेकानंद ने ये लेक्चर दिया था, शायद मद्रास में दिया था, बहुत अच्छा लेक्चर है और मुझे विश्वास है कि आप लोगों ने इसे गंभीरता से पढ़ा होगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर। और अब हम शुरू करें। मैं अपने ईतू घोष से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो इसकी समरी करेंगी। जी मेरी आवाज तो सुन पा रहे हैं सब लोग? जी महाराज जी, हाँ, क्लियर है, क्लियर है। जी शुरू करें। ओके ओके, ठीक। The हाँ, शुरू sages करो। of the sages of India. Swamiji said that the Hindu nation has produced innumerable sages since the time that even history has no record. But here he mentions only a few of the most brilliant and epoch-making sages. Two ideals of truth are present in our scriptures. First, Shruti, Vedas, which deals with the eternal relation of the nature of the soul and of God. This is the law which depicts the framework of destiny and goal of man. These truths are recorded by many sages, men and women. Shruti is perfectly impersonal. Now, second, Smritis or Purans, which have worked out the details of some gigantic, startling, impressive, world-making personalities of magnitude, sometimes even greater than their teachings. These persons are great avatars, prophets, etc. Our religion is safe as it is not based upon persons but on principles, whereas all the other religions of the world depend upon the lives of personal founders, which might tumble down into pieces if there is a fight between the historical evidence of their personalities. The first principle in the Vedas is all that is necessary for the perfection of man and to attain freedom. It is complete here as Tat Tvam Asi was discovered. After this followed the guidance of great personalities from time to time of how to follow along the same age-old path, but according to the different circumstances of the era. It is clear from the saying of Lord Krishna in the Gita, whenever virtue subsides and religion prevails, I create myself for the protection of the good, for the destruction of all immorality. I come from time to time. This is the idea in India. Now, Vedantic religion does not require any personal authority. It declares the eternal nature of man. Its ethics are already existent. The eternal spiritual solidarity of man already attained and not to be attained. On the other hand, our sages were conscious of the necessity of a personality of a personal God in some or the other form. These are worthy of worship more than an imaginary God. Sri Krishna is the great idea of God, the incarnation. The Hindus can worship any sage and any saint from any country, any religion. The rishis are the mantra drashta, the seer of the thoughts, the great authorities. Their declaration was there the eyes, speech and mind cannot reach. Swamiji says, religion is not in books, nor in theories, nor in dogmas, nor in talking, nor even in reasoning. It is in being and becoming.
here is an example. An ancient sage sent to his son to learn about Brahman. When the child came back, the father asked, "What has he learned?" Father found that he learned mere sciences. So twice he was sent back. The third time, the father found the whole face of the son was shining. Then he declared, "Today your face shines like a knower of Brahman." By knowing God, the very face will be changed. He will be a blessing to mankind. At later times, according to the Bhagavad, there are innumerable incarnations. Among those most worshipped are Rama and Krishna. Ram, the idol of the heroic age, was the ideal son, husband, father, and king. The great Sita, purer than purity, all patience and suffering, the ever chaste, the ideal of the people, and the gods, our national god. She is in the blood of every Hindu men and women. Lord Krishna, with a many-sided character, was at once both a most wonderful non-attached sannyasin as well as a householder, having renunciation along with wonderful rajas and power. Lord Krishna, the preacher of the Gita, was the embodiment of that song celestial. Swamiji says, without being very holy, very sacred, and perfectly pure, the gopis' love for Krishna cannot be understood. Work for work's sake, love for love's sake, duty for duty's sake should be the goal of everyone. According to the declaration, when virtue subsides, the Lord descended again, and this time in the south as young Brahmin Sankaracharya, who finished all his writings at the age of 16 and was a wonder to the world. Then came Ramanuja with a greater heart. He felt that for the downtrodden, sympathized with them, made the accretion pure, instituted new ceremonies, new methods of worship from Brahmins to Pariya. During the Mohammedan rule, the brightest of these prophets of comparatively modern times was Chaitanya in the north, who represented the mad love of the gopis. Bhakti rolled over in Bengal and brought solace to everyone. His love knew no bounds, and all had a share in his mercy. Now the time was ripe for one to be born, the embodiment of both head and heart, with the brilliant intellect of Sankara and wonderfully expansive, infinite heart of Chaitanya, one who could see in every section the same spirit, working the same God in every being, heart weeping for the poor, weak, outcast, downtrodden, for everyone inside or outside India. His brilliant intellect conceived of noble thoughts to harmonize all conflicting sects in India and abroad, bringing a marvelous harmony, the universal religion of head and heart, into existence. He was Sri Ramakrishna Paramahamsa. He was the fulfillment of the Indian sages and most beneficial for the present time. The son of a poor priest, born in an unknown village, today is worshipped by thousands in Europe and America, and tomorrow by many hundreds of thousands more. And those which were not correct, those which are not correct, were all mine. Whatever, one thing, one second. Huh?
whatever the last line. What he said in the end? At the end, so all the truths were by him, and those which were not correct were all mine. Namaskar. Now finished. No. Let me say now that if I had told you one word of truth, it was his, or of Sri Yes. Ramakrishna. His That is alone. missing from And here. if I had told you many things which were not true, which are Yes. not correct, which were not beneficial to the human race, they were all mine. And on me is the responsibility. Okay, thank you. So a short summary has been done. और स्वामी जी ने इसमें शंकरा साउथ इंडिया के शंकराचार्य और रामानुज को भी शॉर्ट में लिया है, उधर चैतन्य महाप्रभु को भी लिया है। अनफॉर्चुनेटली हम लोग रामानुज के बारे में, शंकर के बारे में तो थोड़ा बहुत जानते भी हैं। चैतन्य महाप्रभु का जो प्रसार प्रचार है वो जानते हैं सब बंगाल में ज्यादा है। इधर बंगाल के बाद में इधर पश्चिम में उनके बारे में कुछ जाना ज्यादा होता नहीं। और दूसरा, स्वामी जी ने इसमें पश्चिम के जो सेंट्स हो गए हैं, तुकाराम हुए हैं, नामदेव इत्यादि होते हैं, महाराष्ट्र के सेंट, उनके बारे में कुछ नहीं कहा। अब वो एक लेक्चर में इससे अधिक स्वामी जी के लिए कहना जरा कठिन ही होगा, मैं समझता हूँ। जो हो, इट हैज बीन डन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब हम इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं, ठीक है? शुरू करें? अच्छा, तो अब शुरू करते हैं डिस्कशन। सबसे पहले सुबीर मजुमदार। सुबीर। हाँ, प्रणाम महाराज जी। हाँ, प्रणाम महाराज जी। पहला सवाल महाराज जी है, व्हाट इज मेंट बाय अ मंत्र दृष्टा? प्लीज इलैबोरेट महाराज जी। इलैबोरेट ऐसा है, मंत्र क्या है? मंत्र है, मंत्र की डेफिनेशन होती है मननात् त्रायते, जिसका मनन करने से त्राण करता है, ऐसा किया। लेकिन मंत्र जो है वो एक्चुअली है छोटे पैसेजेस जैसे हैं, कुछ कुछ शब्द हैं और उनमें बहुत गहरा मीनिंग होता है। अब उदाहरण के लिए लेवें, श्री रामकृष्ण ने, शिव राम जी ने क्या कहा? जो तो मत तो पत, है ना? छोटा सा, और कितनी बड़ी गहराई बात है उसमें। जो तो मत आज का ये मंत्र हो गया। शिव ज्ञान है जीव सेवा, शिव ज्ञान थोड़ा सा। तो ये श्री रामकृष्ण क्या हो गए? मंत्र दृष्टा हो गए। जी, हो गए ना? जी बिल्कुल। उन्होंने मंत्र को देखा, डिस्कवर किया, डिस्कवरिंग। जी जी जी। तो ये जो डिस्कवरर होते हैं, मंत्रों के, आध्यात्मिक सत्यों के उद्घाटन करने वाले, उनको हम कहते हैं मंत्र दृष्टा। स्वामी विवेकानंद कहते हैं आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय। हाँ, जी महाराज। उसके बाद स्वामी जी के तो बहुत सारे कोटेशन, जैसे कहते हैं ना, ट्रुथ, प्यूरिटी एंड अनसेल्फिशनेस, wherever these are, it is no power below or above the sun to crush the possessor thereof. Equipped with these, one individual is able to face the universe in opposition. Truth, purity and selfishness, बस खत्म। These are all realizations. तो ये हुआ। हाँ, वे लोग रियलाइज होते हैं। हम लोग बोलने से काम नहीं चलेगा। जी जी। हम लोग क्या है कि दूसरे की बात सुन के बोलते हैं। जी, ये बात जो है उनके अंदर से, हृदय से आविष्कार होती है, उन्होंने रियलाइज किया है और उसके बाद बोलते हैं, इसलिए ये मंत्र बन जाते हैं। तो ये कह सकते हैं कि मंत्र दृष्टा जो डिस्कवर स्पिरिचुअल ट्रूथ्स के, स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स के डिस्कवर जो होते हैं, वो मंत्र दृष्टा के। ठीक है? ठीक है महाराज। महाराज जी, सेकंड क्वेश्चन है, पेज 191 में स्वामी जी कहते हैं, एट द सेम टाइम, ये शंकराचार्य के रिलेटेड भी बोल रहे हैं, एट द सेम टाइम ही वाज अ ट्रेमेंडस अपहोल्डर ऑफ एक्सक्लूसिवनेस एज रिगार्ड्स कास्ट, बट विथ एवरी वैष्णवाइट प्रीचर वी फाइंड अ वंडरफुल लिबरलिज्म एज टू द टीचिंग of caste questions, and but exclusiveness as regards religious questions.
Now, please explain. And also, why was Shankara so exclusive regarding caste? Was it because he did not want to make the mistake that happened during Buddhism? Didn't want to have that repeated? No, don't worry about that mistake. Don't. अच्छा. ये एक तो बुद्धिज्म की बात मिस्टेक नहीं, बुद्धि को बुद्धि मिस्टेक मत कहिए. अच्छा अच्छा. ये बुद्धि की विशालता थी, उसके मिस्टेक हो तो हर एक कोई भी जो सिद्धांत बोलेगा ना तो उसमें मिस्टेक होगी. अच्छा. शंकराचार्य ने किया है तो उसकी कुछ मिस्टेक्स भी होंगी. उनकी कट्टरवादिता एक प्रकार की मिस्टेक है कि शंकराचार्य इतने पॉपुलर नहीं. जी जी जी. बुद्ध तो उदार थे और सारा भारत बुद्ध हो गया था. बुद्ध सब सारे जगह फैला हुआ है, उनकी उदारता के कारण भी तो है. तो जो भी सिद्धांत तो उसके प्लस पॉइंट भी होते हैं, नेगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं. ओके. तो उस पे हमको नहीं जाना है. यहाँ पर जो बात कही गई है वो ये है कि उन्होंने कास्ट क्यों बना के रखी. तो क्या है कि वेदांत में कुछ इंपॉर्टेंट साधन चतुष्टय कहे गए हैं. यानी वेदांत जो है अहम ब्रह्मास्मि की बात है, तो शंकराचार्य तो इसके ऊपर बेस किया है ना. तो अहम ब्रह्मास्मि है तो वो जो है सबको अधिकारी नहीं बनाया. तो अधिकारी बनने के लिए उसको शम दम उपरति तितिक्षा होना चाहिए, विवेक वैराग्य होना चाहिए, संयम होना चाहिए, ये होना चाहिए. इस दृष्टि से जो द्विज हैं, यानी ब्राह्मण एग्जैक्टली शंकराचार्य तो थोड़ा आगे चले जाते हैं, लेकिन द्विज के बिना नहीं चलेगा. जी जी. यानी कम से कम जन्म से कुछ संस्कार अगर नहीं होंगे तो ऐसा व्यक्ति वेदांत का अधिकारी नहीं हो सकेगा. दैट इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट. जी जी. अच्छा, दूसरी बात ये रखिए, सोशियोलॉजिकली जो है ये पॉइंट्स कभी कभी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं. इसके कारण यानी सोशियोलॉजिकली ये समाज तंत्र है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का जो डिवीजन है ये कभी कभी समाज के लिए इम्पोर्टेंट रहता है. नहीं तो जैसे मिक्सिंग अप ऑफ दिस कास्ट होने का संभावना होती है. तो मुझे लगता है कि ये जो है शंकराचार्य का है, जो वेदांत की चर्चा की उसमें तो अहम ब्रह्मास्मि कर दिया उन्होंने. जो तुमने कहा ना कि उस दृष्टि से तो एकदम विदा हाईएस्ट है, एब्सोल्युटली. लेकिन जहाँ सोशल आया उसमें बहुत रिस्ट्रिक्ट हो गए. जी जी जी. और उसके बाद में फिर वो कहानी भी है कि चांडाल की कहानी, चांडाल वाला कहानी. जी जी. तो उसने कहा कि फिर तुम आत्मा मानते हो तो क्यों करते हो. लेकिन उसके बाद क्या उससे चेंज तो नहीं हुआ ना. शंकराचार्य ने स्तुति की, वो सब किया, भगवान मान लिया, शंकर मान लिया, लेकिन उसके बाद उनसे चेंज तो नहीं किया ना. तो और अभी भी जो लोग ये अपने दंडी है ना वो बहुत स्ट्रिक्ट है. वो ब्राह्मण शिवा और किसी को वो स्वीकार नहीं करते. और वैसे तो रामकृष्ण मिशन में भी हम लोग इस चीज को स्वीकार करते हैं कि जिसको संन्यास होता है तो उसके पहले जब ब्रह्मचर्य की दीक्षा होती है तब हम सबको ब्राह्मण बना लिया जाता है, जो किसी भी जाति को. शूद्र भी आया, मिशन आ गया, या वैश्य भी आ गया है तो उसको वो यज्ञोपवीत दे के और उसको गायत्री दिया जाता है ब्रह्मचर्य के समय. जी जी. तो ये एक संस्कार की बात है. जी जी. एक संस्कार की बात है. बिना संस्कार के यू हैव टू हैव सम सॉर्ट ऑफ ए डिवीजन. सभी भेड़िया दसान हो के जैसा कहा ना कि बौद्ध धर्म में फिर उसके बाद में एग्जैक्टली है और मैं यही कह रहा था महाराज. एग्जैक्टली वो टाटर्स आ गए, बलूच आ गए, उन्होंने आके सारा वो करप्ट कर दिया. जी महाराज. जी महाराज. सतीश वेग सतीश. दैट्स ऑल. प्रणाम महाराज. अच्छा प्रणाम महाराज. आ जाओ. Maharaj, my first question. Yes. Page 175. Consciousness is bound by the senses, and truths of spirituality we also see in a superconscious state of the humans. Maharaj, my question is, what is the difference between consciousness and superconsciousness? जो phrase है superconsciousness, it also includes consciousness. So how can superconsciousness be different from consciousness?
It may be in the तुमने जो degree, किया है, जो स्वामी जी की ये बात higher उठाई है, higher sense of degree. तो उसमें तीन बातें हैं। एक तो सेंस जी, सेंस एक्सपीरियंस की बात कर रहे हो तुम, isn't it? सेंस एक्सपीरियंस है, उसमें कॉन्शियस लेवल है, ठीक है? जी जी जी। ए सतीश, सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? हाँ हाँ जी, सुन रहा भाई हूँ, तुम्हारा सुन कट रहा गया। सुन रहा। और तुम बोलो, ठीक है, तुम्हारा वो हो गया था, म्यूट हो गया था। नहीं नहीं, हमारा चल रहा है। अच्छा ठीक, तो सुनो सुनो, एक तो हम सेंस लेवल है हमारा, सुन रहे हो संजय? बोलते जाओ। ए सतीश, तुम सुनाई नहीं दे रहे हो, तुम रिस्पॉन्ड करो, मैं बोल रहा हूँ उसको। जी महाराज चल। अरे वी आर नॉट लिसनिंग टू यू। सतीश, तुम सुन रहे हो नहीं मेरे को? महाराज सुन रहा हूँ। अच्छा, तो पास में आके बोलना फिर। सतीश जी, आप दो डिवाइस से लॉग इन है शायद। जी जी जी। लेवल बताए हैं, एक सेंस लेवल है, एक लेवल है, एक सुपर कॉन्शियस लेवल है, ठीक है ना? पास होते हैं तो वो इको करते हैं, इसलिए एक को म्यूट कर दिया मैंने, अब देखें। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके ओके। ना इसलिए ये है कि जो हम सेंस लेवल में विचार करते हैं, उसमें कॉन्शियसनेस रहती है और उसके बाद में सेंस एक्सपीरियंस होता है। जब सुपर कॉन्शियस स्टेट पे जाएंगे तो सेंस लेवल नहीं रहेगा, केवल सुपर कॉन्शियसनेस रहेगी। उस समय कॉन्शियस, जो रेगुलर कॉन्शियसनेस होती है वो भी नहीं रहती, केवल सुपर कॉन्शियस एक्सपीरियंस होता है, उसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। डोंट मिक्स अप विथ कॉन्शियस एंड सुपर कॉन्शियस। हमको सुपर कॉन्शियस का एक्सपीरियंस नहीं है, ये समाधि में होता है, और ये जब हमको एक्सपीरियंस, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस होगा तब होगा। अब तुम्हारा क्या क्वेश्चन है? यानी उसमें यह है कि सुपर कॉन्शियस लेवल में सेंस लेवल नहीं रहता और कॉन्शियस लेवल भी नहीं रहता। यू गो इनटू सुपर कॉन्शियस, उसी में सारी अनुभूतियां इत्यादि होती हैं। संजय, इसको देखो क्या हुआ। जी जी। सतीश को म्यूट करो भाई। महाराज आवाज आ रही है? हाँ जी, मैं दूर से बोल रहा हूँ। महाराज सेकंड क्वेश्चन, पेज 179. Krishna was the most wonderful sannyasi and the most wonderful householder in one. He had the most wonderful amount of rajas power and was at the same time living in the midst of the most wonderful nature. To know how Swami is saying that Shri Krishna was living as householder amidst the most wonderful renunciation. What were the characteristics of renunciation those were seen in Shri Krishna's household life? महाराज जैसे ठाकुर जी के जीवन में आता है कि माता टांकी नॉन अटैचमेंट, नसीहत कर जी जी महाराज। नॉन अटैचमेंट का ही प्रश्न है ना तुम्हारा? नहीं महाराज, कंप्लीट नॉन अटैचमेंट, पूर्ण रूप से अनासक्त है। भयानक वॉर है, युद्ध हो रहा है, और बीच में अर्जुन के साथ बात कर रहे हैं और अर्जुन घबरा रहा है, पसीना आ रहा है अर्जुन का, हाथ पैर कांप रहे हैं, धनुष गिर रहा है। और श्री कृष्ण जो है, उन्होंने तो धर्म संस्थापन उसी के लिए अर्जुन को लेकर ही सब किया था, प्लान किया था। उनकी सारी योजना, सारी स्कीम जो है धर्म संस्थापन की, एकदम समाप्त होने वाली है, और श्री कृष्ण जो है हंस रहे हैं। उनका पल्स नहीं बढ़ा, ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ा,
What can be greater renunciation than this? दूसरा, उनके सौर जितने भी यादव थे उनके लिए इतना किया, उनके लिए उन्होंने यादवों का द्वारका बनाई, सब कुछ किया, और वो लोग एक दूसरे को मार मार के मर गए। श्री कृष्ण ने इतना सब किया था, उनका सारा प्रोग्राम समाप्त हो गया, फिर भी शांत रहे, बिल्कुल शांत रहे। तीसरा, उनको पैर में वो लग गया, तीर लगा, कुछ भी चिंता नहीं की। जो आया उसने कहा कि महाराज गलती हो गई, कोई बात नहीं, चिंता नहीं किया। इससे ज्यादा रिनंसिएशन और नॉन अटैचमेंट और क्या हो सकता है? स्वामी जी महाराज, अब कहने का मतलब कि नॉन अटैचमेंट एंड रिनंसिएशन दे आर वन एंड द सेम थिंग। रिनंसिएशन का तुमने जो प्रश्न किया वो उसमें ओरिजिनल में स्वामी जी रिनंसिएशन की बात कहते हैं। जी जी। तो यहाँ पे रिनंसिएशन नॉन अटैचमेंट ही है। रिनंसिएशन के दो पोर्शन है, एक है बाहरी रिनंसिएशन, सब कुछ छोड़ के चले जाओ, सन्यासी बन जाओ, और दूसरा है इंटरनल रिनंसिएशन, and this internal renunciation is total non attachment. This is what I am saying, man. Okay. ठीक महाराज, ठीक। तो महाराज, third question, page 187. Buddha was a great karma yogi, but the work had one great defect, and for that we are suffering even today. His high ideals could not be well assimilated. The Vedic sacrifices were obliterated, and in their place came gorgeous temples, gorgeous ceremonies, and gorgeous priests. Maharaj, my question is, how does this all lead to degeneration of their reason? At page 189, Swamiji also says, Buddhism denied the soul and God. Again, my question is, how would it lead to degeneration? 189 page, na? 189 or 187? 189 page. महाराज पहले 187 ऐसा है? My question is, what led to the degeneration of Buddhism? देखो, ऐसा है कि डिजेनरेशन जो है ना, रिनंसिएशन, त्याग के बिना हमेशा डिजेनरेशन होगा। जी महाराज। और देखो, स्वामी विवेकानंद खुद कहते हैं कि वे लोग जो है भोग में पड़ गए, बड़े गॉर्जियस, बड़े टेम्पल्स बन गए, गॉर्जियस सेरेमनी हो गई, और वैराग्य और त्याग क्या हुआ? टेम्पल और सेरेमनीज और टेम्पल से धर्म नहीं होता, ये सब दिखावा, एक्सटर्नल चीजें हैं। त्याग इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, और बुद्ध में वो था मोस्ट इम्पोर्टेंट, बुद्ध का मैसेज था वो तो त्याग का था, और लोग उसको छोड़ दिए थे, इसके कारण डिजेनरेशन हुई। Right, Maharaj, right. Last question, Maharaj, page 189. Swami said the temple of Jagannath was an old Buddhist temple. At the same time, Swami says we took this over and re-Hinduized it. Maharaj, अगर जो पहले वो बुद्धिस्ट टेम्पल था तो फिर उसको री-हिंदुआइज्ड कैसे? क्या हुआ है? स्वामी जी कहते हैं the temple of Jagannath was an, क्वेश्चन क्या है? Maharaj, Swami said the temple of Jagannath was an old Buddhist temple. We took this over and re-Hinduized it. Maharaj, how can it then be said that it was initially a Buddhist temple if it was re-Hinduized? देखो, ओके, इसके ऊपर मैंने बहुत, तुम्हारा क्वेश्चन था उसमें मैंने काफी रिसर्च किया,
ये पुरी में हमारे कोई अपने भुवनेश्वर में हमारे डिवोटीज हैं, वो रिलेटेड थे, उनके मैंने बहुत कम्युनिकेशन करके किया, तो उसमें ये पता चला है कि देयर आर वेरियस व्यूज, और उसमें ये कहते हैं कि शुरू में ये एक वैष्णव टेम्पल था, उसके बाद में वो क्या है, मैंने कहीं जगह लिखा भी है, इसमें नहीं है, मेरे मोबाइल फोन में है सर, वैष्णव टेम्पल था, उसके बाद में जैन टेम्पल भी हुआ। सो एक सेंचुरी तक जैन टेम्पल हुआ, बीसी सेंचुरी, यानी 300 बीसी के आसपास, 300-200 बीसी वो जैन टेम्पल रहा। उसके बाद में 500 साल तक बौद्ध टेम्पल रहा। उसके बाद में उसका भी डिक्लाइन हो गया। उसके बाद ये वैष्णव टेम्पल हुआ, फिर शंकराचार्य आए, इस प्रकार से चलता रहा। लंबी हिस्ट्री है, बड़ी लंबी हिस्ट्री है। मैं तो आश्चर्यचकित हो गया। मैं भी ये सोच रहा था कि पहले बुद्धिस्ट टेम्पल रहा, उसके बाद में शंकराचार्य ने इसको कन्वर्ट करके और वैष्णव भारतीय इंडिया हिंदू टेम्पल बनाया, लेकिन नहीं, उसके पहले शुरू में बहुत सारी चीजें। तो ये तुम्हारा पॉइंट ठीक है कि स्वामी जी ने जो कहा है कि री हिंदुआइज किया है, मतलब उसके पहले वो हिंदू टेम्पल था। इसके मैंने को डिटेल किया है, ओके। प्रणाम महाराज। ठीक है, अच्छा भाई, अब कौन है? अब क्या आ जाइए हाँ आप, महाराज। कुंडू। प्रणाम महाराज। Maharaj, after reading the article, I have the following question. Question 1, Maharaj. What is meant by being and becoming? Aren't they synonymous? What is the difference between them? Arey, this is not the word, they are the phrases. The whole sentence is a being and becoming is a phrase. You don't take the word of meaning of being and becoming, the meanings are same. Being and becoming is to practice that what you say. That is the meaning of the whole phrase. Yes, Maharaj. इस whole phrase का meaning है ये। यानी धर्म का हिंदी ट्रांसलेशन हुआ, धर्म जो है साक्षात्कार करने की वस्तु है, वो बीइंग एंड बिकमिंग का अलग अलग ट्रांसलेशन नहीं होता। यस मैम, ओके। बहुत सारी इंग्लिश की हाँ, यस होती है ना। अंडरस्टूड Got my point? So you practice like what you have understood and all, you become that. Okay, Maharaj. Yes, Okay, Maharaj. Now about religion in different places, Swamiji defines religion as, like here it says being and becoming. Somewhere else he says it is a manifestation of divinity already in man. And somewhere he says religion is realization. Are they different, or how can we synthesize them? No, they are the same. Yes, Maharaj. यानी manifestation of divinity and realization. Realization manifest divinity होगी तब फिर realization होगा ना. Okay. And being and becoming also is realization. बिना उसके थोड़ी होगा. Practice करना पड़ेगा. Yes, Maharaj. सब the same thing is being told in various different ways. Okay, Maharaj. And in page 188, Swamiji says that Buddhism created Brahminism and idolatry in India. How can it be true when, as a rebel child, Buddhism came as a protest against priesthood and ritualistic Hinduism? Brahminism तो पहले था ना महाराज, वही मैं पूछ रहा हूँ। ऐसा है कि उसके बाद स्वामी जी का जब आया रिलीजन, पहले क्या था? यज्ञ थे, पंच यज्ञ। यस महाराज। पंच यज्ञ में क्या है? ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, भूत यज्ञ, भूत यज्ञ और पितृ यज्ञ। यस महाराज। तो ब्रह्म यज्ञ है स्वाध्याय, देव यज्ञ है यज्ञों देवताओं के लिए यज्ञ के ना,
पितरियों के लिए है, पितरों का श्राद्ध तर्पण। इत्यादि करना। प्राणियों के लिए है, और मनुष्यों के लिए क्या है? अतिथि सेवा है। यस महाराज, और प्राणी हो उनको खिलाना पिलाना। यस महाराज, जो गृहस्थ होता था तो वो अपने घर में अग्नि जला के रखता था कंटिन्यूअसली, मालूम है ना? यस महाराज, साग, अग्निहोत्र किया करता था, घर में बराबर रहती थी। तो वो आए सब यज्ञों को हटा दिया, मार डाला, खत्म कर दिया। अब बुद्ध, बेचारा हिंदू आदमी क्या करेगा? तो तब पंडे आ गए और पंडों ने यह सब बाकी कार्य ब्राह्मणिज्म चालू कर दिया, क्रिया अनुष्ठान जो है अब चालू कर दिया। घर में जो ब्रह्म देव यज्ञ होता था या भूत यज्ञ होगा था, नृ यज्ञ, मनुष्यों की सेवा, वो सब खत्म हो गया। इसलिए स्वामी जी क्या कहते हैं कि इट केम टू ब्राह्मणिज्म। ठीक है ना? ओके महाराज, यस महाराज, हाँ। ओके, अंडरस्टूड। प्रणाम महाराज। ठीक हुआ? हाँ, यस महाराज, अंडरस्टूड। इसीलिए ब्राह्मणिज्म आ गया। ठीक है, ओके। क्वेश्चन हो गया तुम्हारे? तीसरा हो गया? हाँ, यस महाराज, खत्म हो गया। देवाशीष? ओके, हाँ, देवाशीष। प्रणाम महाराज जी, प्रणाम हम्म, महाराज जी। पहला क्वेश्चन जो था वो तो सुमित ने पहला क्वेश्चन पूछ लिया, मंत्र दृष्टा, वो तो आपने बता दिया। हाँ। सेकंड क्वेश्चन है कि पेज 174 में, हाउ कम देन द नॉलेज व्हिच द वेदस डिक्लेयर इट कम्स थ्रू बीइंग ए ऋषि? मैंने वेदस में जो नॉलेज दिया हुआ, इट कम्स थ्रू द ऋषिज। तो व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ ऋषिज दैट दे अंडरस्टैंड दिस नॉलेज? वो साधना करके मंत्र दृष्टा बनना पड़ेगा, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। तो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस जो है उसमें विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति, मुमुक्षुत्व, घोर तपस्या, साधना, उसके बाद में व्यक्ति ऋषि बनता है। याज्ञवल्क्य है, फिर विश्वामित्र हैं, वशिष्ठ हैं, ये सब के सब ऋषि थे। तब क्वालिटी ऑफ ऋषि तो ये क्या है, वेदांत का विषय है पूरा। अच्छा, तो उसके अंदर तो सब वर्णन, जैसे मैंने कहा ना कि यम या विवेक वैराग्य होना चाहिए, वे पक्का वैराग्य होना चाहिए। उसके बाद शम दम उपरति तितिक्षा, तितिक्षा समाधान, ये 6 मॉरल वैल्यूज होनी चाहिए। उसके बाद में मुमुक्षा होना चाहिए, मुक्त होने की इच्छा होनी चाहिए। ये सब चीजें नहीं होंगी तब तक कैसे काम चलेगा? अच्छा महाराज, these rishis were or householders, married or sannyasis? हाँ, हाउस होल्डर्स थे। ओह, अच्छा। क्या तुम ये डर रहे हो कि अगर मेरे ऋषि बनना पड़ेगा तो मतलब संन्यास लेना पड़ेगा? डरने की बात नहीं है। यस। इतना मत डरो भाई, इतना डरने की बात एक्चुअली नहीं है। ये क्वालिटीज तो तेरा जम के लगना पड़ेगा। अभी सब बात की ना, वैराग्य की बात कही, रिनंसिएशन, तो कृष्ण, श्री कृष्ण जैसा रिनंसिएशन होना पड़ेगा। हाँ, तो वो तो अवतार थे, अवतार का तो कुछ भी हो सकता है। तो अवतार तो बताने के लिए अवतार रहते हैं ना, आदर्श प्रस्तुत करने के लिए अवतार होते हैं। उसका तुमको आचरण करना, उनका वैराग्य का, विवेक का, अनासक्ति का आदर्श है ना। अवतार कर दिया तो हम तो नहीं हो सकते, ऐसा तो नहीं ना। अच्छा, और श्री रामकृष्ण ने क्या, श्री रामकृष्ण हम नहीं हो सकते, लेकिन श्री रामकृष्ण के जीवन के आदर्शों को आत्मसात अपने जीवन में डालना है, इसीलिए तो इतनी मेहनत की उन्होंने। हाँ महाराज जी, हाँ जी। उठा के हटा दिया तो कुछ नहीं आएगा। अरे भाई ऐसा प्लान करो ना, ये 20 साल में मैं 20 साल में ऋषि बनूंगा, ऐसा प्लान करो, चलो। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ। ये जूम मीटिंग में जितने लोग हैं ना, उनको सबको ऋषि बनना है। महाराज जी, जंगल में जाना पड़ेगा, एकांत में रहना पड़ेगा। हे भगवान, बार बार तुमको यही कह रहे हैं। अरे बीच बीच में एकांत में जाके रहो, बीच बीच में आश्रम में जाके रहो, 3 दिन 5 दिन ठाकुर बोलते हैं। तो उसके बाद तुम भी मास्टर महाशय बन जाओगे। अच्छा, तुम भी जो है वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर बन जाओगे। हाँ,
तो महाराज जी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर साहब, आपने इस प्रश्न उठाया इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ईश्वर चंद्र विद्यासागर में तो ये क्वालिटीज तो था ही नहीं ऋषि का, ऋषि हुड। अरे ऋषि थे, अरे बाप रे, उनके जैसा ऋषि क्या होगा। हाँ, ठाकुर जी ने बताया था कि इनका जो सोना है इंटेलेक्चुअल था। इंटेलेक्चुअल शादी तो नहीं की थी उन्होंने, इतने था, कितना सब सेवा करते थे, सब करते थे। अच्छा अच्छा अच्छा, हम जानते नहीं है उनके बारे में, जीवनी जाई नहीं जानते हैं ना। अच्छा अच्छा। और ठाकुर के बहुत सारे भक्त थे, गृहस्थ भक्तों की जीवनी पढ़ो, उसमें मिलेगा कितने सब भक्त थे, इतने अच्छे अच्छे भक्त थे। महाराज उन्होंने प्लान करो ना भाई, प्लान करो ना। महाराज उन्होंने 15 शादी तो साल, किया 10 था, साल है। उन्होंने मैरिज किया था। He was married. अरे जो मैरिज से क्या लेना देना ऋषि का, हम हाँ। तो बोल रहे हैं ना, जी। मैरिज से तो ऋषियों का रहना देना है ही नहीं। सब लोगों को प्लान करना चाहिए। अरे मैं तो सोच रहा हूँ कि मेरा नाम होगा। हाँ। मेरी प्रेरणा से आप लोग ऋषि बन रहे हैं। जी, ये तो सच बात है। आप प्रेरणा दे रहे हैं, हम लोग में तो वो होना चाहिए। महाराज जी, महाराज जी, क्वेश्चन नंबर एक क्वेश्चन है पेज नंबर 179 180, and here my friends, through this love of the gopis has been found the only solution of the conflict between the personal and the impersonal. How this conflict was eliminated in case of gopis, page 179 180 में, and here my friends, through this love of gopis has been found the only solution of the conflict between the personal and the impersonal. How this conflict between the personal and impersonal was eliminated in case of gopis? Because क्लियरली लिखा हुआ है वहां तो, लव के कारण। प्रेम करने पे हुआ क्या, गोपियां जो हैं प्रेम करते करते गोपीज बिकेम वन विद कृष्णा। हाँ, तो उसके बाद में क्या रहता है, वेयर इज द पर्सन, पर्सन हैज गॉन अवे, दे बिकम वन विद कृष्णा। कृष्णा बिकेम इम्पर्सनल। महाराज जी, एक चीज है, ये जब यशोदा मैया के पास ये अपने जो गए थे उसको समझाने की कि आप ब्रह्म है, ये है वो है, तो कुछ समझ नहीं रहा, तो बोला मेरा कृष्ण, ये कृष्णा कैसे है बताओ। मतलब ब्रह्म ज्ञानी, इम्पर्सनल मत ब्रह्म ज्ञानी, और पर्सनल मतलब है कि ईश्वर, है ना। तो ये दोनों में तो अंतर उनमें था ही नहीं कि वो पर ब्रह्म है कृष्णा या मैं बोला तो, गोपियां जब भगवान के प्रेम में लगी तो उसके बाद में वो कृष्ण को भी भूल गई, वो खुद कृष्ण हो गई। तो यू बिकम वन विद गॉड। व्हाट इज दिस, इज इट नॉट इम्पर्सनल? बिकम वन विद गॉड, yes, इज इट नॉट इम्पर्सनल? it is, yes yes yes, देयर इज अ पर्सन रिमेनिंग। न अच्छा खुद का पर्सन है, न बाहर का पर्सन है, एक हो गया है। अच्छा अच्छा, ओके महाराज। नाउ पेज नंबर 180 में क्वेश्चन है, द्रौपदी डिस्कसिंग द युधिष्ठिरा इन द फॉरेस्ट, इफ देयर इज अ पर्सनल गॉड and all merciful, all powerful, why is the hell of an earth here? Why did he create this? He must be a partial god. It is not understood how the solution can be found is what you read about the love of gopis. से तो हो गया महाराज, अभी तो आपने बताया हो गया, ये तो अभी भी बताया आपने, हो गया द्रौपदी का क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in the prayer of Draupadi there is mention of Vrindavan life, and in the speech of Shishupal there is again mention of this Vrindavan. All these are interpolations. What the Europeans do not want must be thrown off. How does it happen, the Europeans interpolations? ये कैसे Europeans लोग interpolate करते हैं? अरे अभी तो बता दिया ना कि they are not interpolations. They are not interpolations. यूरोपियन बोले तो उसे क्या होता है, उससे क्या लेना देना? They are not at all interpolations. स्वामी जी खुद तो बोल रहे हैं, carefully read. स्वामी जी himself says that whatever Europeans say, they you would accept it. What is this? We don't accept it. ये सब तो लाइफ, वृंदावन लाइफ वगैरह तो है वहां पे।
तो ये फिर श्लेष करके बोला है ना? हाँ, उसको प्रेस करके वो उसको अप्रूव करते हुए बोला है। हाँ हाँ ठीक है ये महाराज। यूरोपियंस एक्चुअली। हाँ 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 नेक्स्ट क्वेश्चन है महाराज जी। Taking the life of any sage or prophet, we find that prophet is only the evolution of what had gone before him. We find that prophet is only preaching the ideas that had been scattered about his own country, even in his own times. Question is, prophet is a person who says what will happen in future. How is it that he can speak only the evolution of what had gone before him? उसका पहले क्या हुआ? पेज नंबर बोलो, पेज नंबर। पेज नंबर 182 183 182 का एंड में, 183 का शुरू में, 182 का एंड में, 183 का सेकंड में। एक क्वेश्चन मैंने पूछा नहीं था लेकिन ये मैंने लिखा है बाद में। Taking the life of any other sage or prophet, we find that the prophet is only the evolution of what had gone before him. We find that the prophet is only preaching the ideas they have scattered about his own country, even in his own time. Great doubts may exist even as to whether the prophet existed or not. But I challenge here anyone to show whether these things, these ideas, work for work's sake, love for love's sake, duty were not original ideas with them. No, तो no, what is your question? Question is that prophet is a person who says what will happen in the future. We say Swami ji has said that 15 years तक हमने जो दिया है वो रहेगा, और बहुत ढेर सारी चीज बताए गए. How is it that he can speak only the evolution of what had gone before him? इधर जो बताया गया है नहीं महाराज जी, ठीक है. Because when he is the embodiment of what is there, so he is able to predict what is going to happen. ओहो अच्छा ठीक है, नहीं लगता है तो ठीक ही लगता है. हाँ महाराज जी ठीक है, समझ में आ गया महाराज जी, ये समझ में. और एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 मैं थोड़ा बाद में पढ़ता हूँ. Any attempt to modernize our women, if it tries to take our women away from the ideal of Sita, is immediately a failure, as we see every day. So महाराज जी अभी तो most of the modern women of India are trying to imitate the Western women, smoking, wearing dresses of men, and lot of them are having the habits of drinking alcohols. And what is this? Who is modernizing our women? Who is modernizing our women? So you people, this don't ask me. I also know many great women in India, young modern women. They are leading a highly noble life. I also know such women. Is it the effect of education system of India? अब एजुकेशन में जो वो नहीं जानता. अरे तुम्हारे टीवी में तो डी एजुकेशन हो ही रहा है ना. अच्छा टीवी तो सब बर्बाद कर रहा है सबको. महाराज जी एक तरफ तो स्वामी जी बोलते हैं कि Still I know many women are holding on to the old ideals. हाँ महाराज जी. अरे निवेदिता तुम बोलो इसके ऊपर कुछ. No, from the beginning only there are two types, means ideal and other common type. So most of our education they follow the due to Macaulay, we think that our old Arya, all this Sanatan Dharma is not proper, not good. So they are following all Western country. But if we want the progress of our country, the ideal of Sita has to be accepted. Ideal of pureness, purity, sincerity, and this one,
But you, madam, you send your children to the English medium Christian schools and all. No, let it be. Let it be. English also, they have got, there are many No, they good become things and bad westernized. things. No, they become But westernized. we have to accept only good things, not bad things. But That's at it. that age, no one accepts it. Vivek Vairagya should be there. Otherwise, there will be no progress. It comes late. It comes very late when you are 20. No, in that sense, the guru and teachers and the mother and father, they have to help. Yes, the Okay. Yes, sanskar I comes agree from with home. you. If the parents are ideal, then the son will be. Okay, I agree with you. Yes, I Maharaj. may, घर से Swamiji, संस्कार आते हैं. Swamiji, may I say something? Yes. Here, Swami Vivekananda had a lot of Western ladies, very highly educated ladies, Sister Nivedita, Christina, Josephine MacLeod, Sarah Bull, and many others whom he called mother and father, the Wrights and this thing, who were very noble ladies, but they were very adept at housekeeping, cooking, stitching, all these, and yet they were very high-souled and noble and pure. That is what we lose sight of this purity. What is meant by purity? Purity means that you have noble thoughts and not Okay. come down. Okay. Yeah. Okay. Thank you, Maharaj. Thank you. That's all. I am. No, point is. I finished. Okay, shall we go ahead? Yes, Maharaj. मेरा खत्म हो गया. Thank you, Maharaj. We had lot of discussion on this. Thank you, Maharaj. Any other question? No, thank you, Maharaj. Okay. Nivedita? Ji Maharaj. The first question is in the second para, page number. Let me say that next class, Yes. next Sunday will be start at 8:45. Okay, Okay. please remember all of you. 8:45 next Sunday. Okay. Okay. Chalo, Nivedita. Swamiji is telling us about Shruti and Smriti. Can we correlate with this Prasthantraya? Vedanta, we are reading the Prasthantraya. The Shruti, Smriti and Nyaya. Huh? Don't worry about Nyaya. Nyaya. Shruti, Prasthantraya mein Shruti Prasthan और Smriti Prasthan is the same. Okay. वो श्रुति और स्मृति दोनों एक ही. And Nyaya Prasthan we should not. No, same thing. Same thing. Okay. Shruti Prasthan is Shruti. Smriti Prasthan is Smriti. Okay. एक ही है, same. The second question is, in spite of our religion, Swamiji is telling no, our religion is the means it depends on the principle, and other religions are all on the person only. So person or Shastra. This one, in spite of our religion, I have gone to Google and researched. So our religion is 50% less popular than the Christian. That's why I asked this question. So ours is 15%. Yes, from Google, okay. Yes. So that's why I want to know why is it. You have told me. I've been thinking where Google. I cannot answer Google. How can I answer Google? No, why is our religion is not so popular? Remember, all religions who are based on person are always more popular. Acha. Because of people desires. Don't go to principles. People don't go to principles. Okay. Yes, कृष्ण राम का भजन ज्यादा करेंगे, principles नहीं जानते. Correct. Principles persons जो है, that is always more popular. ये बराबर. It is exactly the same. This is the reason why it is not popular, because it is based on principle. Yes, correct. And then what is the meaning of Vedas are authoritative of Krishna himself?
So many avatars will come and go. Hmm. Vedas will remain the same. Hmm. Yes, yes. All the principles are there. Same question. Hmm. All the principles are already been put before us Hmm. in the Vedas. Okay. They are the main fundamental authorities. Hmm. Even on the above the Vedas, even above the avatar. Hmm. महाराज जी एक क्वेश्चन करूं महाराज जी इसी सिलसिले में ठहरो ठहरो अभी ठहरो इसी सिलसिले में बोलो बोलो अच्छा बोलो अच्छा ये जो वेदस में आवर ऋषिज रियलाइजेशन जो अपने लिख के गए हुए हैं तो इसको वेरीफाई तो कोई करना चाहिए ना कि वेरिफिकेशन श्री कृष्ण भगवान ही किया है और माने एवरीथिंग गॉट ब्लॉसम्ड इन हिज लाइफ व्हाट हैज बीन रिटन इन वेदस इज इट करेक्ट व्हाटएवर हैज बीन रिटन इन द वेदस समबडी अरे इसीलिए वेरीफाइड है अरे देवाशीष साहा शुड वेरीफाई इट बाय एक्सपीरियंस वेरीफाई बोलने से कैसे काम चलेगा देवाशीष साहा मस्ट वेरीफाई आई मस्ट वेरीफाई एंड सी व्हाट इज दिस now it is done now verification is already done no what has been told and I practice it put it into practice अच्छा बोलने से क्या होता है नहीं श्री कृष्ण भगवान ने तो वेरीफाई किया कि इन हिज ओन लाइफ इट इज ब्लॉसम्ड ऑल द ट्रुथ्स ऑफ वेदस लेकिन वो तो ठीक है लेकिन वो तो सब वेदा ही तो इम्पोर्टेंट है ना हाँ हाँ तो फिर उनका जीवन में लेके हम कर रहे हैं हाँ तो उनका जीवन में प्रस्फुटित हुआ है तो हम तो श्री कृष्ण भगवान को मानते हैं तो एनीबॉडी जिसको ट्रस्ट करते हैं इसका मतलब है तो इसलिए मानते हैं कि उन्होंने वेद को प्रूव किया यस तो वेद इंपॉर्टेंट हो गए तो यस यस हे भगवान यस महाराज थैंक यू महाराज जी fourth question is third question the truth can be seen in superconscious state of mind. So आपने अभी डिस्कशन किया था सुपर कॉन्शियस माइंड सो how to reach that level in staying in संसार साधना के द्वारा बोलने से नहीं होगा क्लास से नहीं होगा जूम से नहीं होगा साधना के द्वारा होगा साधना बोलने से हाउ टू रीच सुपर कॉन्शियस थ्रू स्पिरिचुअल प्रैक्टिस Swamiji has kept. Achha, this is the same regarding the same question. Sita's as ideal before us. Possible? Is it possible in modern days where the women do not protest the? If they do not protest, the torture will increase so much. What is the solution? मैं तितिक्षा अगर करे तो ये तो प्रॉब्लम तो ज्यादा बढ़ेगा दिस इज राइट जस्ट भाई ये ऐसा है कि आई कांट आंसर दैट हाँ you are women you have to observe that find out ओके women जो है प्रोटेक्शन में रह के भी तो सीता को आदर्श बना के रह सकती हैं सीता is the idol and it is not necessary that Sita must be every woman must be taken away by Ravana. Every woman can be Sita in her own position, situation. Why should there be any difficulty? This is your question, na? No, protest we have to do. No protest. The women should protest. जो भी corruption या कुछ. Think about the village where they are tortured. You are women. You take it. I can't answer this question. Swamiji, question I can't answer. Maharaj, can I say something? Yes. I think, yes, we at times feel that in the worldly sense, whatever happened to Sita was wrong and all these things, and she didn't protest. She suffered. But if we see the life of Holy Mother, in her own way, she had a life full of deprivation. She didn't get much. But in terms of contentment and in terms of being ideal to others, I think she had led a very successful life. And in our moment of depression, we find lots of inspiration from her life. So in the present context, I feel the life of Holy Mother becomes an example as to how to lead
a perfectly contented life in the modern age? Actually, that was not the question. But mother has also protested. So in many places, mother has protested. Yes. She was very strong woman. Your answer is very good, excellent, excellent. Now, the point is that Swamiji in this article has gone only up to Sri Ramakrishna. He did not go to Holy Mother. Correct. This is unfortunate part here. So, of course, we can only discuss Sita. What can we do? Sita is Swamiji was a great admirer of Sita. But Holy Mother, of course, but he himself did not want her to come out. Maharaj, He was said that, Holy Mother tell about was very strong character. She also protested in many places. And firmly she protested. You see, now if you take Holy Mother as our ideal. we are discussing Sita. Very difficult. That's what I am telling. Kundu has very correctly. Holy Mother ought to have been included by Swamiji in this article. Correct. That is. And last question is, there is one small sentence that I cannot understand. There are, let me repeat, impure fools, even born of our blood, who try to shrink from that as if from something impure. Please explain the number 181. Yeah, this is the Gopis love, regarding Gopis love. He's talking about Gopis love. Okay. There are fools who criticize Gopis, they don't understand. That is the problem. कौन सा पेज है ये? 181. कोई तो कहते हैं there are, I repeat, impure fools, even born of our bird, who try to shrink from that as if from something impure. Gopis love जो है वो was not impure love. It is the highest manifestation of prem. Prem, okay. Highest manifestation of prem. To them, I have only to say, first make yourself pure. And you must remember that he who tells the history of the love of gopis is none other but Sukdev. Bapre. सुखदेव जैसे लोग गोपियों का वर्णन कर रहे हैं और ऐसी गोपियों को तुम अपवित्र समझते हो? पहले अपने आप को पवित्र करो, तब गोपी पढ़ना, नहीं तो पढ़ना नहीं चाहिए. Because you will misunderstand them. That is the thing, unfortunate thing. The historian who regards this marvelous love of gopis is one born pure, eternally pure, Sukdeva, the son. So long as there is selfishness in the heart, so long as love of God is impossible, it is nothing but shopkeeping, etc. And गोपियों ने तो अपना सर्वस्व दे दिया था. So long as such ideas are in the brain, how can one understand the mad throes of gopis' love? That is the thing. His love is highest, very highest. Okay. That is the That's all. हो गया? जी महाराज. रीता. Yes, Swamiji. आइए. My first question, explain the difference between Shrutis and Smritis. How are Shrutis enough for spiritual life of a beginner? You have answered the question already to Dr. Nivedita's questions. But I want to know how Shrutis are enough for spiritual life of a beginner. है जैसे for example, you know, अगर beginner जो है वो स्मृति लो ना. स्मृति क्या है?
रामायण, महाभारत, विष्णु पुराण, रुद्र पुराण, श्रीमद् भागवत, हाँ, अगर बिगिनर ये सब पढ़ेगा तो क्या होगा? इतना confusion. सारी चीजें पढ़ेगा तो वो कंफ्यूज हो जाएगा। Yeah. स्मृति क्या है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद ये सब नहीं पढ़ना है। तुम केवल कठोपनिषद पढ़ लो, ईशावास्य उपनिषद पढ़ लो, बस काफी हो जाएगा। Yes. दैट इज द गीता। पॉइंट। Yes. Now I तो get उनके it. यदि करोगे तो उससे हो जाएगा। जो बिगिनर है ना, मेनी थिंग्स कंफ्यूज हो जाएगा। उपनिषद, ईशा उपनिषद, थोड़ा सा साधन चतुष्टय बोल दिया तो उससे काम चल जाएगा। The second question is page महाराज 173. एक बात मैं पूछती हूँ. Sometimes the beginners, they don't understand all this Upanishad and hard things. So for them only in the village, suppose it is in the village, Ramayana and Mahabharata, they are studying first, they are reading Mahabharata. That takes interest also. नहीं तो वो तो क्या है कि कहानियों के माध्यम से उसको समझेंगे तो समझ जाएंगे इसमें कोई। हाँ जी। हाँ। तो बिगिनर्स के लिए मेरे ख्याल से तो स्मृति इज बेस्ट। नहीं नहीं, बिगनर्स में क्या है कि वो किसी को गाइड करना चाहिए, बिना गाइडेंस के होगा नहीं। गाइड। Yes, true. महाराज जैसे बच्चों को माँ बचपन से सुनाती है, रामायण महाभारत में संस्कार डालती है और वैल्यूज उससे वो पिकअप करता है महाराज। ठीक है, बिल्कुल दैट इज स्मृति ट्रू। मैं भी यही समझता हूँ, जब तुमने कहा ना, ठीक बात। Swami ji, my next question तो is, स्वामी जी ने किस भाव से, इन किस आइडिया से स्वामी जी ने कहा, ये कहना बड़ा मुश्किल है। जी। Sri Krishna is greater than any idea of God you or I can have. Buddha is a much higher idea, a more living and idolized idea than the idea you or I can conceive of in our minds. And therefore it is that they always command the worship of mankind, even to the exclusion of imaginary deities. What does Swamiji mean here? What is the direction Swamiji is giving us? वो कृष्ण को बड़ा बता रहे हैं, दैट इज द थिंग। कृष्ण तो भगवान स्वयं, कृष्ण तो मल्टी साइडेड पर्सनालिटी है, उसकी ये बात है। और गीता जो है वो तो बहुत बड़ा लिटरेचर है ना। यस। भागवत और गीता, उसके अंदर श्री कृष्ण है। इसके अतिरिक्त तो अब क्या बोल रहे हैं स्वामी जी करना चाहते हैं, मैं नहीं कह सकता। Third question. How can the superconscious open for beginners? बता दिया ऑलरेडी। बिगिनर में How can the what type of beginners? Like us? You are like you are there. How that will open in next birth, you know. If you begin at the age of 60, begin at the age of 60, how can the superconscious open, Baba? That will begin in the next birth. That can we see glimpses also in this birth? I have not any glimpses. How can I tell you? If I have not got any glimpses, how can I tell you? But Maharaj, your face is shining so much. Your face is shining so much, so you must have realized. क्या बोला? My face is shining. Shining, वो जो हम लोग स्टोरी में पढ़े हैं ना, फादर सन को बार बार भेजता है, वैसा शाइनिंग आपके फेस में आ गया है. So you must have realized. ये तो काशी में आके रहो ना तो सब शाइन करने लग जाता है. काशी is a Maya free zone. अच्छा चलो next question. Next is, how can one love for love's sake, work for work's sake, and duty for duty's sake?
when the consciousness of I am loving, working, or doing my duty is always present. No, it's never there. When a mother is loving the baby, she never thinks that I am loving. Oh. When the mother is cooking, she never thinks I am cooking. She is doing her duty. ऐसा सोचते थोड़ी है कि मैं कर रहा हूँ. We never, whenever we are doing some work with concentration, duty with concentration, we generally do with full concentration, and our mind is not divided. We don't feel like that I am loving. Oh, yes, yes. किसी ने कभी सोचा है? ना, कोई व्यक्ति बच्चा को, माँ बच्चे को प्यार करती है, सोचती है कि मैं प्यार कर रही हूँ? ये क्या क्वेश्चन? Yes. Then the fifth question is how to completely remove selfishness from one's heart. How to remove Selfishness. How to remove selfishness completely from one's heart. अरे ये तो सारी साधना यही है. Don't expect a return. ड्यूटी का निस्वार्थ भाव से करो, ड्यूटी करो अपनी, प्रेम करो. ये मत सोचो कि मुझको कुछ चाहिए कि नहीं चाहिए. Don't think that what I want this thing or that thing. Do not expect anything. Then the last one is 189 page. Swamiji says, Shankara showed that the real essence of Buddhism and Vedanta are not very different, but the disciples did not understand the master and degraded themselves. Even now, in the name of Rama, the noblest and righteous incarnation, all kinds of crudities are being committed. What is the duty of those who know that they are not the teachings of the master like Rama or any incarnation? No, you what you think is correct, you follow it. No other duty. Let people, there are hundreds of interpretations of Rama and Krishna's teachings. उनको जो करना है उसको करने दो. तुमको जो ठीक समझे उसको करो, और क्या बात है? No other duty. No other duty. No other duty. Swamiji, and the last thing, may I just say one small thing? Swamiji, no, I just want to tell anyone who is interested in the story of history of Jagannath to read that huge book, The Cult of Jagannath and Religious Traditions in Orissa, which is a research work which covers all archaeological and everything. With its sequel, there is also it's a 2-volume. There is a sequel to it also. Those who want to read it can read it if they are interested. That will give them it gives a very Shivani, come on. महाराज जी आज तो 11 सितंबर है. अच्छा शिवानी नहीं है तो इतू आर यू रेडी? जी प्रणाम महाराज. मेरा दूसरे क्वेश्चन यू आस्क. सेकंड क्वेश्चन का तो आंसर मिल गया, केवल फर्स्ट क्वेश्चन वो भी हाफ मिल गया है. जैसे ये है ना मेनी ऑफ नहीं ये नहीं. आस्क द क्वेश्चन नाउ. हाँ अभी एक सेकेंड. ये जो स्वामी जी कह रहे हैं, ए माय फ्रेंड्स, until each one of you has become a rishi and come face to face with spiritual facts, religious life has not begun for you. Until the superconscious opens for you, religion is mere talk. It is nothing but preparation. So ये तो बहुत कठिन बात है महाराज, नहीं तो हम तो कभी भी
रिलीजन में पहुंचेंगे ही नहीं। ये तो अरे इसका अगर समाधान क्या आसान है? हो जाता, अगर ये आसान हो जाता ना, तो बहुत सारे ये- सैकड़ों ऋषि हो जाते, और इतने ऋषि हो जाएंगे हाँ, सब ये अपनी तो अपनी। है। ऑलरेडी देयर इज लॉट ऑफ प्रॉब्लम। लेकिन और टीवी और न्यूज़पेपर लेके ही इतना प्रॉब्लम है, और अभी इतू और निवेदिता और ये कुंकू वगैरह ये सब ऋषि हो जाएंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा भाई, जरा सोचो तो। तो फिर It's कोशिश not no क्यों कर easy। रहे हैं हम लोग? मत करो, ऋषि होने मत की करो, जरूरत फिर मत आओ, मत नहीं, ऋषि मत की करो, जरूरत मत नहीं कोशिश है। करो। नहीं महाराज, हैं? ऋषि तक पहुंचने की तो करो ना, ऋषि मत बनो, ऋषि मत नहीं बनो, है। आधा ऋषि, हाफ ऋषि, 1/4 जन्म ऋषि में तो हो। लेकिन हाफ ऋषि, 1/4 ऋषि, इज दैट ओके? समझेंगे हम आधा ऋषि तक पहुंचे हैं, कैसे समझेंगे कि 1/4 या आधा ऋषि बने हैं, कैसे समझेंगे? ये तुम सब समझ जाओगे, नहीं तो हमसे पूछ लेना, जूम मीटिंग में पूछ लेना, बता देंगे। नहीं, वो तो नहीं है। आपके एक्सपीरियंस से बोलिए कि कैसे थोड़ा भी मतलब समझ में आती है कि हाँ हमारा थोड़ा प्रोग्रेस हो रहा है, ये कैसे समझेंगे? भाई ऐसा है, एक के पहले इसके बाद एक हमने एक आर्टिकल डिस्कस किया था, गो फॉरवर्ड, एक जूम मीटिंग में गो फॉरवर्ड डिस्कस हुआ था, उसको देखना अच्छा। पता लगा। और उसके अंदर मैंने वेरियस लेवल्स बताए थे, अलग अलग जैनिज्म में क्या अच्छा, कहा हाँ। है, ठाकुर ने क्या कहा है, पहला भूमि, दूसरी भूमि, इसके बाद क्या है, ये सब चीजें सब शास्त्रों में कहा गया है प्रोग्रेस के बारे में। वो पढ़ो उसको, उसमें सब दिल जाए। ठीक है, प्रणाम ठाकुर महाराज। बोलते हैं ना, और- ठाकुर ने भी कहा है, इसके बाद ये है, इसके बाद ये है, इसके बाद ये है। अच्छा जी। और बस यही प्रश्न, दूसरे का तो उत्तर मिल सेकंड गया। क्वेश्चन, सेकंड अच्छा क्वेश्चन वो ठीक जो है, क्या था यूरोपियन के मेरे को बारे में। अच्छा ठीक है, मिल गया तो कोई बात नहीं। अच्छा अब आ हाँ। जाओ फिर शिवानी। हाँ, जो प्रणाम महाराज। शिवानी हाँ, अब, प्रणाम महाराज। बोलो उसको, तुम्हारा जूम। हाँ महाराज, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, द इनकार्नेशन सीता was to establish the role model or to show the society's thinking or attitude towards the lady living independently, as these things are still present in the society. No, what is your question? Question is, the incarnation Sita was to establish the role model or to show the society's thinking. क्या करें? हाँ, The women of India must grow, develop in the footprints of Sita, and that is the only way, as mentioned in the article. How and what to be followed? As today women are more educated and not ready to listen these kind of things anymore. Second question, Maharaj. हाँ, How we can follow the footprints of Ma Sita? Like No, as no, मैंने ये mentioned in कहा the ना। article. हाँ. we follow, the ladies can follow for the footprints of Holy Mother. हाँ, ठीक है. सीता के, अब सीता जो है वो माँ शारदा आके एक नया आदर्श बना के चली गई है ना, उसको फॉलो। ठीक है महाराज. हाँ, थर्ड क्वेश्चन, हाउ वी कैन लर्न नॉन अटैचमेंट? और नॉन अटैचमेंट ऐसा है, एक रॉन्ग क्वेश्चन है इसमें। पहला ये है कि तुम गीता जो है वो नॉन अटैचमेंट का या किताब बुक है जी, उसको रेगुलरली पढ़ो। दूसरा, स्वामी हम्म। विवेकानंद का कर्मयोग अच्छी तरह पढ़ो, वो नॉन अटैचमेंट ही है पूरा का पूरा, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है. तीसरा, स्वामी ब्रह्मानंद जी कहते हैं, बिफोर यू बिगिन द वर्क रिमेम्बर गॉड, डू ऑफ ऑल्सो इन द एंड एंड ऑल्सो इन बिटवीन। जितना आप कंटिन्यूअसली भगवान का चिंतन करेंगे उतने आप नॉन अटैचमेंट होते जाएंगे। और स्वामी जी ने कहे कर्मयोग में तुम देखना दो बताई हैं। एक तो यह है कि कर्म करो और उसके बाद उसका
फल जो है निरंतर भगवान को समर्पित करते रहो, एक बात। और दूसरी बात स्वामी जी ये कहते हैं कि हमेशा सोचो कि आई हैव टू बी अनअटैच्ड, आई हैव टू बी अनअटैच्ड, मुझे अनासक्त होना है, मुझे अनासक्त होना है, इसी बात को मन में बना रखो। तो these are the various ways in which it can be done. तुम इसको करो और उसके बाद मुझसे डिस्कस करना। तो ठीक ये है कर्मयोग, स्वामी जी का कर्मयोग और गीता में से दोनों में से एक कर्मयोग पर्टिकुलरली पढ़ जाओ, वो उसमें स्वामी जी बहुत नॉन अटैचमेंट की बार बार बात करते हैं। नॉन अटैचमेंट तो कर्मयोग का फंडामेंटल है ना जी। तो वो गीता में भी यही बात कही है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, बार बार कहते हैं कर्म करो और किसी चीज की चिंता नहीं करना। नहीं, वो तो कर्म के साथ तो हो जाता है, पर लोगों के साथ अटैचमेंट तो लोगों के साथ में ये है कि उसमें हमारी क्या है कि दोनों चीजें हैं, आसक्ति है, अनासक्ति है। आसक्ति में क्या है कि हमको सुख प्राप्त होता है, प्रेम के कारण सुख प्राप्त होता है, इसलिए हम आसक्त हो जाते हैं और इसके लिए बार बार सोचना पड़ेगा, यानी वो ये सोचना पड़ेगा कि ये दुख का कारण है, बार बार ये सोचना पड़ेगा कि ये दुख का कारण है, मैं आसक्त हो जाऊंगी और उसके बाद में फिर जब विरह होगा, कोई प्रॉब्लम होगी तो इससे मुझे कष्ट होगा। स्वामी जी कहते हैं वी मस्ट हैव इंटेंस पावर ऑफ अटैचमेंट एंड इक्वली इंटेंस पावर ऑफ डिटैचमेंट, ये आइडियल है। और यही कहना पड़ेगा कि आई मस्ट बी अनअटैच्ड, आई मस्ट बी अनअटैच्ड, मुझे अनासक्त होना चाहिए, अनासक्त होना चाहिए, बार बार अपने को कहना। आई अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम। ठीक है महाराज। नेक्स्ट क्वेश्चन, why the faces of spiritual person shines? Because of purity of their heart or their bhakti? यस, अब वो निवेदिता से पूछो, निवेदिता से, वो मेरे चेहरे के ऊपर ज्योति देख रही है मेरे को नहीं मालूम अरे हम लोग तो क्या है कि आनंद रहते हैं ना, आनंद रहते हैं। भगवान का चिंतन करोगे ना तो मन प्रसन्न होगा, भगवान का चिंतन करते 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 मन शांत होता है, प्रसन्न होता है, धीरे धीरे वो चेहरे पे आ जाता है। संसार के लोग जो क्रिमिनल लोग होते हैं तो उसका धीरे धीरे मन जो है उस चेहरा उसी तरह खराब हो जाता है, जैसा आप मन में रहोगे वैसा उसके चेहरे पे आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन कुछ है ही नहीं। ठीक है महाराज, खत्म करें? दैट्स ऑल। थैंक यू महाराज, प्रणाम। प्रणाम महाराज, नमस्ते महाराज जी, प्रणाम। नमस्ते करो, हम नमस्ते महाराज। शांति मंत्र महाराज। करूंगा। वो ऐसा है कि अभी शुरुआत जो हुई थी तब करीब 20 लोगों ने ज्वाइन किया था, अभी जब खत्म कर रहे हैं तब भी 14 लोग हैं। हाँ, 20, 24, 22, 23 थे, जब धीरे धीरे चले गए। महाराज सुनिए ना, सबसे इम्पोर्टेंट मेरे ख्याल से स्पिरिचुअल लाइफ में इंद्रिय संयम है बस ना। नहीं, हर एक व्यक्ति का अपने अपने है, आसक्ति इंद्रिय संयम बस इंडिविजुअल ऊपर निर्भर करता है। महाराज वो इसलिए भी कम होंगे, आज चंडीगढ़ आश्रम में हाफ डे रिट्रीट है ना, तो कुछ लोग वहां चले गए होंगे। नहीं, हाँ, यहाँ वहाँ भी नहीं है, और वहाँ पे सेवा रूरल में रिट्रीट चल रही है। भाई, पंकज भाई, विनोद भाई, सीके बोरा, वो 4 लोग तो वहाँ पे डेफिनेटली गए हैं। हाँ, सतीश जी यहाँ गए होंगे, सतीश जी, भांजी जी। महाराज ओम शांति शांति।